Hello guys, welcome to our DSA Networks of Placements course. And actually this video is in continuation to the shuffle and array problem that we discussed before. And it is I think called design one shuffle and array. Okay, तो उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हमें कोई array को shuffle करते हैं, right? And any output, and given that all the elements are unique in an array, what we also have is that कि the probability of reaching to that any output, right? So for example 1 2 3 से हम 2 3 1 पे पहुंच सकते थे, 3 2 1 पे पहुंच सकते थे, 1 3 1 1 3 2 पे पहुंच सकते थे. The probability of getting any such output is very uniform, right? This is what has been given to us, that all permutations of the array should be equally likely as a result of the shuffling. Okay. Now that we know this, what we implemented in our class is basically हमने एक solution constructor implement किया, फिर हमने एक reset function implement किया. And हमने एक shuffle function implement किया, right? In the shuffle function, we actually had the time complexity of big of n square, and we wanted to see if we can do something better here. Right? Space complexity is linear, but time complexity जो है वो मेरे को थोड़ा सा खटक रहा है और मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे इसमें इसको better कर सकता. And this is where a very interesting algorithm called as Fisher-Yates algorithm comes into picture. So I'm not gonna go and give much intuition. थोड़ा सा intuition की बात करेंगे और फिर हम लोग सीधा कोड करने की कोशिश करेंगे. Okay, so what we have here is again kind of relying on the random thing only, ठीक है? And we also have to see कि इस algorithm को implement करने से भी हमारा जो the probability of getting any output, right, or any permutations, for example 1 2 3 could be, or we have shown this above, right, in the previous video, is that कि 1 2 3 से आपको 1 3 आ सकता है, 2 1 3 आ सकता है, 3 1 2 आ सकता है, 1 3 2 आ सकता है, 2 3 1 आ सकता है, 3 2 1 आ सकता है. ये कोई भी एक आउटपुट आने की प्रोबेबिलिटी आपकी एकदम इक्वली लाइकली होनी चाहिए थी, राइट? सो व्हाट वी कैन से हियर इज ओके, इफ वी हैव समथिंग लाइक दिस, नाउ लेट्स से व्हाट फिशर-याट्स एल्गोरिथम टेल्स अस, राइट? सो फिशर-याट्स एल्गोरिथम से even before Fisher-Yates algorithm, let's take about this, right? So what we have is this, right? So basically let me write the indexes here, so 0 1 and this. Okay, so what we did is, let's say we started from here, right? हमने यहाँ से शुरू किया, ठीक है? हमने बोला भैया रैंडम नंबर जो भी आप रैंडम लेट्स कॉल दिस रैंडम वेरिएबल, हमने उसको बोला कि भाई आप ना मेरे को इसमें 0 और 2 के बीच में कोई एक इंडेक्स रिटर्न करके दे दो, ठीक है, रैंडम. तो लेट्स से ही पिक्ड वन इंडेक्स, ठीक है, उसने वो इंडेक्स 1 पिक कर लिए, ओके, और हम यहाँ से शुरू किए थे, इस इंडेक्स से शुरू किए थे, ठीक है. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ओके, अगर इसने इंडेक्स इसने पिक किया था 1 पिक किया था, so what I can say is कि just swap these elements, right? Just swap these elements. After swapping it, what will happen is this 2 actually, this 2 comes here, right? और basically 2 मैं blue में इसलिए लेता हूँ क्योंकि what I want to say here कि इतना आप हमारा randomly, इतना आउटपुट हमारा randomly आ गया है, ठीक है, इतना हमारा randomly आउटपुट हो गया है, ठीक है. And after swapping, what will have here, this will become 1, ठीक है, यहाँ पे हमारी वैल्यू पर आ जाए, ठीक है. नाउ व्हाट वी डू, वी टेक दिस ith इंडेक्स, ठीक है, ये ith इंडेक्स हमने उठाया, इसको हम लेके चले आगे, ठीक है. अब हम इसको क्या बोल रहे हैं भाई, अब इसको हम बोल रहे हैं कि आप मेरे को एक ना रैंडम इंडेक्स दे 1 और 2 के बीच में, ठीक है, 1 और 2 के बीच में कोई एक रैंडम इंडेक्स दे. लेट्स से दिस फेलो गिव मी 2, ठीक है, तो नेक्स्ट रैंडम इंडेक्स मेरा आ गया, 2 ठीक है. तो हमें रैंडम इंडेक्स क्या मिल गया, हमें रैंडम इंडेक्स 2 मिल गया और हमारा आई कहाँ पे 1. अपन ने क्या बोला भाई, स्वैप, ठीक है, जो भी इंडेक्स मिले थे स्वैप कर. आफ्टर स्वैपिंग व्हाट विल हैपन, दिस 3 विल कम हियर, राइट, दिस 3 विल कम हियर, और यहाँ पे कौन सा वैल्यू था, यहाँ पे 1 था, तो ये 1 है, ये यहाँ पे चला जाएगा, है ना. एंड सो फार दिस पार्ट, राइट, 2 and 3 आर शफल्ड, राइट, एंड देन व्हाट वी डू, वी से कि हमारा आई जो है भाई तो आगे बढ़ जाओ. अब हम अपने रैंड फंक्शन को क्या बोल रहे हैं, हम उस रैंड फंक्शन को बोल रहे हैं कि भाई ये जो 2 इंडेक्स है और बस एक ही इंडेक्स है, तो वो क्या ही देगा, तो 2 ही देगा. तो वी टेक 2 एंड वी स्वैप इट, तो 1 अगर स्वैप ना भी करो तो भी चल जाएगा, राइट. सो दिस इज व्हाट वी हैव हियर, राइट, हमारे पास ये कुछ ऐसा आ गया. सो एट दिस पॉइंट जब हमारा आई यहाँ पे था, राइट यहाँ पे था, तो किसी भी इंडेक्स को, और देखो हम आपका एरे में शफल हो गया, राइट, एंड आई शुड हैव ड्रॉन दिस एक्चुअली विथ ब्लू बिकॉज दिस पार्ट इज ऑल्सो डन, राइट. आफ्टर डूइंग दिस my I will jump out of this, right? Now think about this, right? Probability किसी एक इंडेक्स को लाने की पहले 3 में से क्या थी, probability of getting the first index, right? Let me write this idx1, क्या थी, it is 1/3, right? 0 और 2 कोई भी पिक कर सकता ना. Now let's say I picked
वन इंडेक्स और मैंने स्वैप कर लिया, उसके बाद मेरी IDX2 की प्रोबेबिलिटी क्या थी? IDX2 की प्रोबेबिलिटी 1/2 थी। और फिर अगर मैंने 2 इंडेक्स के मेरे हो गए और लास्ट इंडेक्स पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? लास्ट इंडेक्स पिक करने की प्रोबेबिलिटी IDX3 इज ओनली 1, राइट? एंड दीज आर डिपेंडेंट इवेंट्स, राइट? दीज आर डिपेंडेंट। आपने एक बार इसको सही कर दिया, इस इंडेक्स को सही कर दिया, नाउ यू कैन ओनली पिक बिटवीन इंडेक्सेस 1 and 2, राइट? बिकॉज 0 इज ऑलरेडी पिक्ड, क्योंकि 0 ऑलरेडी पिक्ड हो गया था, तो अब आपके पास यही 2 इंडेक्सेस प्रेजेंट, सो दीज आर डिपेंडेंट इवेंट्स, राइट? एंड इफ दे आर डिपेंडेंट, द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/3 multiplied by 1/2 into 1/5, which is 1/6. And this is what we wanted, right? Because in the previous video we actually discussed, right, कि कोई भी परम्यूटेशन की कोई भी आउटपुट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए थी? 1/6 होनी चाहिए थी। ये आपको क्वेश्चन में भी दे रखा था, राइट? The question said that all permutations of the array should be equally likely as a result of the shuffling. Okay, so looks like this thing is actually working, and what we're gonna do is we are gonna actually start implementing the Fisher-Yates algorithm. इसमें भी एक्चुअली ना हम लोग रीसेट फंक्शन, सोल्यूशन फंक्शन और बाकी चीज़ें नहीं करेंगे, बस हमें शफल ही एक्चुअली इंप्लीमेंट करना है। ओके, सो व्हाट आई गोना से इज लेट मी रिमूव दिस पार्ट, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग अपना Fisher-Yates algorithm इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं। ओके, so what we want is we want to go through each of our element in our array, I less than array dot length, and then I is equal to I plus 1. Okay, now let's talk about this. Okay, तो अपने पास क्या है? अपने पास एक array है जो कि 1, 2 and 3, ठीक है? इसके इंडेक्सेस क्या हैं? 0, 1 and 2, ये इसके इंडेक्सेस है। हमारा I कहाँ पे है? हमारा I यहाँ पे है। अभी हमें इंडेक्सेस किसके बीच में चाहिए? अभी हमें इंडेक्सेस चाहिए बेसिकली 0, 1 और 2 के। तो लेट्स से वी पिक वन इंडेक्स, राइट? तो हम लोग एक रैंडम इंडेक्स पिक करते हैं। रैंड इंडेक्स इज इक्वल टू r डॉट नेक्स्ट इट, राइट? इफ यू रिमेंबर गाइस, दिस r इज बेसिकली नथिंग बट अ क्लास वेरिएबल जिसको हमने कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कर दिया था न्यू रैंडम के साथ, ठीक है? सो इफ आई गिव दिस लेट्स से array डॉट लेंथ, राइट? इसको अगर मैंने array डॉट लेंथ दे दिया तो अभी क्या रिटर्न करेगा? दिस विल रिटर्न 0, 1 and 2, राइट? तो अगर इसको हमने 3 दिया है तो बेसिकली इट रिटर्न्स नंबर, इट कैन रिटर्न एनी इंटीजर बिटवीन 0 and n-1. तो इट रिटर्न लेट्स से राइट नाउ इट कैन रिटर्न बिटवीन 0, 1 and 1. लेट्स से वी डिड स्वैप, राइट? हमने स्वैप कर दिया, तो इफ आई हैव टू स्वैप देम, सो लेट मी जस्ट राइट हियर, सो temp is equal to array of I, and then array of I is equal to array of rand IDX and array of rand IDX is equal to temp, ठीक है? तो ये हमने स्वैप कर दिया इसको, है ना? तो ये स्वैप वाला कोड एक बार के लिए ठीक है, चलो ठीक है। और फाइनली इवेंचुअली आफ्टर डूइंग दिस वी शुड रिटर्न आवर array, ठीक है? नाउ व्हाट वी आर सेइंग इज वी हैव टू for the first case, right, for the first case we can pick indexes between 0, 1 and 2, ठीक है? ठीक है, चलो वो पिक हो गया। इसके बाद जब I हमारा आगे बढ़ेगा, राइट? तो यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट आ गया होगा, लेट्स से 3 केम हियर, राइट? एंड 1 केम हियर, ओके? नाउ व्हाट शुड हैपन हियर कि अब जो हमारे इंडेक्सेस होने चाहिए थे, राइट? हमारे इंडेक्सेस और जो भी हमारा रैंडम इंडेक्स जो आना चाहिए था, इट शुड हैव बीन फ्रॉम 1 to 2, है ना? 1 और 2 के बीच वाला होना चाहिए था, है ना? तो अगर ऐसा है तो हमको इसको कैसे करेंगे, राइट? तो व्हाट वी कैन से हियर इज कि फॉर एग्जांपल इफ आई हैव I हियर, राइट? तो मेरा रैंडम नंबर कहाँ तक जनरेट करेगा? ये 0, 1, 2 मेरे को जनरेट करके दे देगा। सो बट आई वॉन्ट फ्रॉम 1 to 2, तो ये जनरेट करेगा देगा 0, 1, 2 से। तो इफ आई कैन ऐड I हियर, राइट? अगर मैं इसमें I ऐड कर दूँ तो अब ये क्या जनरेट करके देगा? अब ये बेसिकली मेरे को जनरेट करके देगा 1, 2 and 3 तक। लेकिन व्हाट आई वांट? आई वांट ओनली टिल 2, है ना? मेरे को 3 नहीं चाहिए, एक कम चाहिए, राइट? तो व्हाट आई कैन डू इज जस्ट सब्ट्रैक्ट I फ्रॉम हियर, ओके? एंड लेट्स सी, राइट? सॉरी, लेट्स सब्ट्रैक्ट I फ्रॉम हियर एंड लेट्स सी इफ इट वर्क्स फॉर द लास्ट इंडेक्स, राइट? लास्ट इंडेक्स में लेट्स से वी डिडंट डू एनी स्वैप और हमारा ऐसे ही रहा, और इस इंडेक्स पे बेसिकली इसको बस 2 पिक करना चाहिए था। तो लेट्स सी इफ योर एल्गोरिथम वर्क्स हियर, राइट? सो दिस विल बी I, तो I अपना 2 हो गया, प्लस r.extend array dot length -2, 3 - 2 is 1, एंड नेक्स्ट इंट क्या करता है? आपका 0 और 1 के बीच में जनरेट करके देता है ना? तो 0 और जो भी आपने इसको पास किया है उससे एक कम तक जनरेट करके देता है, राइट? तो जिसमें हमने क्या पास किया था? इसमें हमने 1 पास किया था, तो 1 पास किया था, तो ये बेसिकली 0 और 0 तक ही जनरेट करके देगा, तो एक्चुअली 0 जनरेट करके देगा। तो I is 2, तो हमें रैंडम टेक्स्ट 2 मिल गया। सो इट्स लाइक दिस थिंग इज वर्किंग, है ना? एंड लेट्स क्विकली वॉक यू थ्रू दिस कि अभी इसमें कैसे ये चीज़ें होंगी, ठीक है? तो ये हमारा
1 था, this is 3 initially, and our I is here. ठीक है, and we have our rand index Ri is here. ठीक है, so initially when I is 0, rand index is 0 plus array dot length minus 0. array dot length is 3, तो 0 1 2 में से कोई भी इंडेक्स जनरेट हो सकता है. लेट्स से Ri 1 हो गया. ठीक है, तो Ri 1 पे जो था, ठीक है, उस एलिमेंट को अपन ने I पे 0 से स्वैप कर दिया. तो आफ्टर डूइंग दिस इज 1 एंड दिस इज 2, राइट. दिस व्हाट स्वैपिंग डज. एंड अब हमारा I आगे बढ़ गया. इसका मतलब है कि इसके पहले वाले जो एलिमेंट्स है ना, दे आर शफल्ड. ठीक है. Now what we have here is, now we calculate again random index, which is I plus r dot length minus, basically what we are generating is 1 plus r function में हमने क्या पास करा, array dot length minus 1. ठीक है, this is basically 2. and r2 का मतलब क्या होता है, r2 का मतलब होता है 0 या 1 में से कोई भी एक वैल्यू आ जाएगी. let's say we got 1, right. तो 1 plus 1 is 2. तो 1 plus 1 is 2, तो ये वाला एलिमेंट इससे हम स्वैप कर देंगे, तो दिस विल बी 3 and this will be 1, right. and then हमारा I आगे बढ़ा, and eventually at this point these array part of the array is shuffled. what we have is 2 plus array dot length minus I. array dot length is 3 minus 2 is 1, right. so this will be 1, and it can generate numbers. Next int basically will generate numbers between 0 and n minus 1. n तो आपका 1 ही है, तो basically 0 ही generate करेगा बस हमेशा, है ना. तो दिस विल बी 2, रैंडम इंडेक्स आपका 2 हो गया. आपने यहीं पे इसके साथ ही स्वैप कर दिया, कुछ हुआ नहीं, और फाइनली आपने ये एरे रिटर्न कर दी, राइट. 2 3 1. सी व्हाट अ ब्यूटीफुल एल्गोरिथम दिस इज, राइट. कितना प्यारा एल्गोरिथम है फिशर-याट्स एल्गोरिथम. एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट इज द टाइम कॉम्प्लेक्स इज एक्चुअली लीनियर हियर, राइट. वी गॉट द सेम प्रोबेबिलिटी वी वांटेड, राइट. वी गॉट द सेम प्रोबेबिलिटी वी वांटेड. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज फाइन. एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज एक्चुअली इस केस में हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ यूज़ भी नहीं करी, राइट. इस फंक्शन में वी डिडंट यूज द सेम एरे, उस एरे में हमने शफल कर दिया. एंड वी ऑलरेडी न्यू कि रीसेट फंक्शन इज ऑलरेडी हैंडलिंग आवर स्टफ, राइट. तो फॉर दिस यू नीड टू वॉच द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो. Okay guys, so that's it for this video, and I hope you really like this, you like the explanation here, and if not, do comment. I'll help you understand any questions around this. See you soon. Bye.